Today we have to discuss about production function part 2. In production function part 2, we have to discuss about the economies of scale, diseconomies of scale, and Cobb-Douglas production function. And from this, you have to must found one question. In paper 2 or paper 3, you have to must found a one question from this production function. Let's discuss. What is economies of scale? Economies of scale is a situation where with increasing in output, average cost of production falls. It can be done in two ways. You have to know that production function means we have to put our input and found our output. So that here average cost of production. When we have to minimum cost of production is decreases and output increases, then it is economies of scale. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि हम जितना इनपुट डालते हैं उतना इनपुट हम कम कम करते जाएंगे और हमारी आउटपुट बढ़ते बढ़ते जाएगी. समझ में आई? इट मीन्स दैट व्हेन हम इनपुट जब हम इनपुट को कम डालेंगे और आउटपुट ज़्यादा आएगी, मीन्स वो स्टेज है कि हमारी मुनाफा ही मुनाफा है, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट. दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. हाउ इट इज पॉसिबल? I have to give you example. Suppose input what? 4 factors of production: land, labor, capital and organization. We have to take 2 example: 10 labor and 5 capital. It is the input and we have to found 100 units of thing. What about we have to suppose we have to produce pen. We have that's why we have to utilize 10 labor and 5 units capital. And we have to see that our total production is 100 unit. To produce 100 unit, we have to utilize our average cost of production is 100 also. Now only we have to do it in 2 way. Our economy scale we have to possible for 2 way. First, we have to input 10 labor and 5 capital and we have to found 200 units. Just look here. Here 100, first we have to found 100 units and second here we have to found 200 units. So that we have to put same input and we have to found more output. First case. Whatever the second case. Second case we have to put half of this input. Means here 10 labor, here 5 labor. Here 5 capital, here 2.5 capital and we also found 100 units. 2 रास्ता है जिससे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को पा सकते हैं. पहले देखो एग्जाम्पल ए, उदाहरण ए कि हम 10 लेबर लेते थे, 5 कैपिटल लेते थे और हमारी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे. हमारी पहले जो रास्ता है, पहला जो पॉइंट है, हम वही 10 यूनिट लेबर लेंगे, वही 5 यूनिट कैपिटल लेंगे और हमारी जो आउटपुट है वो 100 से 200 हो जाएगी. सो दैट इट्स ऑब्वियसली हमारी इनपुट कम हो रही है और आउटपुट ज़्यादा हो रही है. सेकेंड वे क्या है कि हम क्या करेंगे, जितना इनपुट ले रहे थे उसे आधा कर देंगे. 10 लेबर से 5 लेबर लेंगे, 5 कैपिटल से 2.5 कैपिटल लेंगे और हम देखेंगे हम जितने पा रहे थे यहाँ आउटपुट उतना ही मिल रहा है. तो हम किस हिसाब से भी करें, हमारी फाइनल ये होती है कि हमारी इनपुट जो है वो कम होता जा रहा है और आउटपुट जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है. And you have to know that 2 type of economies of scale. One is internal economies of scale and another is the external economies of scale. And you have to know that internal economies of scale means when it is a firm specific benefit. It is a company or firm specific benefit where with increase in scale of production average cost fall. It can be due to introduction of new machinery, applying skill, labors, etc. Means अगर हम कुछ इकोनॉमीज ऑफ स्केल अप्लाई करते हैं और उसका बेनिफिट सिर्फ फार्म को जाता है, फार्म के अंदर जितना डिपार्टमेंट है वहीं जाता है, उस वक्त हम बोल सकते हैं दिस वन इज इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स इट इज एन इंडस्ट्री स्पेसिफिक बेनिफिट्स whose benefit trickle down to all of the firm in a industry. Improved technology for making the product, introduction of new market for the products, proving training to all the employee in the industry etc. That means अगर हमारी कुछ प्रॉफिट हो रही है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को
वो जो पूरा इंडस्ट्री को हर फार्म को जाती है, तब हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरनल इकोनॉमी स्केल का मतलब ये होती है कि जो बेनिफिट होती है वो सिर्फ एक फार्म के अंदर ही रहती है, और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये है कि एक इंडस्ट्री में जितनी फार्म है, अगर उसका बेनिफिट हर फार्म को गई, दैट्स व्हाई एट दैट टाइम वी हैव टू सेट द एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। Second, diseconomies of scale of production. It is nothing but the just opposite of economies of scale. उस टाइम हम क्या कर रहे थे, आउटपुट हम कम कर रहे थे, एवरेज कॉस्ट है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इनपुट हमारी कम हो रही थी और आउटपुट ज़्यादा हो रही थी। और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की मतलब ये है कि हमारी जो आउटपुट इनपुट हम दे रहे थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट देंगे और हमारे आउटपुट कम होती होती जाएगी। मीन्स वहाँ हम 5 लेबर और 10 कैपिटल देते हैं और 100 यूनिट आती है। फर्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, वहीं 5 लेबर और 10 कैपिटल देंगे, हमारी 200 आएगी, 200 यूनिट टोटल प्रोडक्शन आएगी। नहीं तो हम 2 लेबर और 5 कैपिटल देंगे, तब भी हमारी 100 यूनिट आएगी। दिस वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये है कि हम 5 लेबर और 10 कैपिटल ले रहे थे, हमारी 100 यूनिट आ रही थी। हम 10 लेबर और 20 कैपिटल लेंगे, तभी हमारी 50 यूनिट आएगी। दिस वन इज ए लॉस फैक्टर। दिस इज diseconomies of scale of factor. And here also 2 things is there, internal diseconomies and external diseconomies. Internal diseconomies means it implies to all those factors which raise the cost of production of a particular firm when its output increases beyond the certain limit. These factors may be the following 2 types: inefficient management and technical difficulties. Means अगर हमारी जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, अगर हमारी जो टेक्निकल डेवलपमेंट हो रही है, दिन ब दिन नया नया मशीन आ रही है, नया नया डेवलपमेंट की बहुत सारे तरीके आ रही है, अगर हम टेक्नोलॉजी की साथ नहीं दे पा रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज आ रही है, तभी हमारी क्या होगी, टोटल प्रोडक्शन है वो कम होती जाएगी। उसे हम बोलते हैं इंटरनल डिसइकोनॉमीज। मतलब इंटरनल हमारी फार्म और इंडस्ट्री के अंदर ही जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए अगर आउटपुट कम हो रही है, उसे हम बोलेंगे इंटरनल डिसइकोनॉमीज। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज मीन्स if the scale of production increases beyond the optimum scale, the cost of financial capital rises. It may be due to relatively more dependence of the external finances. Diseconomies emerge beyond an optimum scale. That means अगर हमारी कंपनी और फार्म और इंडस्ट्री के अंदर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाहर की सपोज कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, सपोज हमारी एम्प्लॉय के माइंड में कुछ नया रिवोल्यूशन आ जाए और उसके लिए हमारी आउटपुट जो है वो दिन ब दिन घटता जा रही है, अगर मतलब कुछ फ्लू आ जाए तो सबका सब एम्प्लॉय क्या होती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, पूरा का पूरा इंडस्ट्री क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है। कभी कभी आईटी इंडस्ट्री में ऐसे होती है कि कभी कभी कुछ कुछ चीज होती है, बहुत सारा रीजंस होती है जिसलिए पूरा डिमिनिश हो जाती है। दिस वन इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। Now only we have to discuss this economies of scope. What is economies of scope? Economies of scope is nothing but it is an economic theory stating that the average cost of production decreases as a result of increasing the number of different goods produced in a related field. That means हम एक दुकान में जा रहे थे, हम सोचे कि आज पानी पूरी खा के आएंगे, 25 रुपीज की पानी पूरी है, हम 25 रुपीज की पानी पूरी खा के आएंगे। हम जब वहां गए तब पता चली अगर हम 30 रुपये देंगे तो पानी पूरी भी खाएंगे और चाट भी खाएंगे। पर यह है कि हम उस टाइम ये नहीं देखे कि हम 25 रुपीज में 10 पानी पूरी खा रहे थे, अब 7 पानी पूरी खाएंगे और 30 रुपीज में एक हाफ प्लेट की चाट मिलेगी। That's why if you see this policy of McDonald's and KFC, you have to see that with a burger they have to give you a cola or a bucket of puff, only because at a lower average cost that what it would be cost of 2 separate firm to produce each of the goods separately. Means एक ही बिजनेस है, एक ही एंटरप्राइजेस है, सपोज बर्गर ज्यादा बिकती है, पफ ज्यादा नहीं बिकती। अगर हम ऐसे इकोनॉमीज ऑफ स्कोप की जो रूल्स और फॉर्मुलेशन यूटिलाइज करेंगे
तब हमारी एक ही फर्म की दो प्रोडक्ट अच्छी से बिक जाएगी. This one is economies of scope. Sorry, we have to discuss this Cobb-Douglas production function in the next class. Thank you.